سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام۔ ایف آئی اے امیگریشن کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی، اسپین جانے والے مسافر کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ ملزم کو قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور منتقل بھی کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے راہیل علی۔ جی راہیل سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے امیگریشن کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی سامنے آئی ہے۔ اسپین جانے والے مسافر کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے، جبکہ ملزم کو قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور منتقل کر دیا گیا۔ تو آپ کو بتائیں کہ جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے، جبکہ ایف آئی اے امیگریشن کی لاہور ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی سامنے آئی۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان سے لبرٹی مارکیٹ اور ایم عالم روڈ کے تاجروں کی ملاقات۔ تاجروں کے وفد نے مسائل سے آگاہ کیا۔ حافظ میاں محمد نعمان کی تاجروں کے تمام بجلی سے متعلق مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان سے لبرٹی مارکیٹ اور ایم عالم روڈ کے تاجروں کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ تاجروں کے وفد نے مسائل سے آگاہ کیا ہے۔ حافظ میاں محمد نعمان کی تاجروں کے تمام بجلی سے متعلق مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان سے لبرٹی مارکیٹ اور ایم عالم روڈ کے تاجروں کی یہ ملاقات ہوئی ہے، جبکہ تاجروں کے وفد نے مسائل سے آگاہ کیا ہے، جبکہ حافظ میاں محمد نعمان کی تاجروں کے تمام بجلی سے متعلق مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی بھی سامنے آئی ہے۔ ملاقات کا مزید احوال بتائیں گے فہد امین۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان سے گلبرگ میں لبرٹی مارکیٹ اور ایم عالم روڈ کے تاجروں کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وفد کی قیادت جو ہے وہ سابق ڈپٹی میئر رانا اعجاز حفیظ نے کی۔ وفد میں صدر لبرٹی مارکیٹ سہیل سرفراز منج، توصیف قریشی سمیت دیگر جو ہے وہ دکاندار موجود تھے۔ لبرٹی مارکیٹ اور ایم عالم روڈ کی تزئین و آرائش کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی، تاہم تاجر برادری کی جانب سے چیئرمین لیسکو کو جو ہے وہ پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان نے تاجروں کے تمام بجلی کے مسائل جو ہیں وہ ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ کاروباری طبقہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاجروں کے تمام مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ فہد۔ وزیر اعظم کا یونان کے قریب کشتی الٹنے کے واقعے کا نوٹس سامنے آیا ہے۔ ملک میں کل یوم سوگ کا اعلان کر دیا گیا، پرچم سرنگو رہے گا۔ تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جبکہ نیشنل پولیس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل احسان صادق کمیٹی کے چیئرمین مقرر کر دیے گئے ہیں، جبکہ کمیٹی یونان میں کشتی ڈوبنے کے تمام حقائق جمع کرے گی، جبکہ انسانی اسمگلنگ کے پہلوؤں کی تحقیقات بھی کی جائیں گی اور ذمہ داروں کا تعین بھی کیا جائے گا۔ کمیٹی ایک ہفتے میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کا یونان کے قریب کشتی الٹنے کے واقعے کا نوٹس۔ ملک میں کل یوم سوگ کا اعلان، پرچم سرنگوں رہے گا۔ تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل۔ نیشنل پولیس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل احسان صادق کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ کمیٹی یونان میں کشتی ڈوبنے کے تمام حقائق جمع کرے گی، انسانی اسمگلنگ کے پہلو کی تحقیق بھی ہوگی اور ذمہ داران کا تعین بھی کیا جائے گا۔ یونان میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ افسوسناک ہے۔ جام حق نوجوانوں کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ نوجوانوں کو سنہرے خواب دکھانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چیئرمین علماء کرام حافظ میاں طاہر محمود اشرفی کی نیوز کانفرنس مزید کہا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ جو سمندر میں سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے، اب تک کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جو ایک سہانے خواب اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو دکھا کر اور ان کے ساتھ دیکھ کر گئے تھے۔ کسی نے بہن کی شادی کا خواب دیکھا ہوگا، کسی نے ماں کے زیور بیچے ہوں گے، کسی نے باپ کے ساتھ اس کا بازو بننے کا وعدہ کیا ہوگا، اور یہ سینکڑوں پاکستانی سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ ہر ماہ اس طرح کی خبریں ہمیں ملتی ہیں، تو ہم ان کے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ یہاں تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہاں
वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं मुतालबा करता हूँ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब से मुतालबा करता हूँ कि जिन मुजरिमीन ने इनको भेजा है, बदकिस्मती ये है पकड़े जाते हैं, हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है, ज़मानतें हो जाती हैं, कोई उन पर एक्शन नहीं होता। अब तक हज़ारों पाकिस्तानी समुद्रों में डूब गए, जंगलों में मारे गए, जिनको सुहाने ख्वाब दिखा के यहाँ से भेजा गया। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से भी कहना चाहता हूँ कि जनाब 100 मोटो लेना है तो इस पर लीजिए कि मेरा और आपका मुस्तकबिल, इस मुल्क का मुस्तकबिल समुंदर में डूब रहा है, जंगलों में मर रहा है। मरियम नवाज का यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों के जमघट होने पर शदीद इजहार अफसोस। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा कि इंसानी जानों से खेलने वाले स्मगलर्स को करार वाकई सज़ा दी जाए। मरियम नवाज का यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर शदीद इजहार अफसोस। चीफ ऑर्गेनाइज़र नून लीग की मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा कि इंसानी जानों से खेलने वाले स्मगलर्स को करार वाकई सज़ा दी जाए। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन पर अमीर जमात इस्लामी का सख्त मौक़िफ़। सिराजुल हक ने मुबैना धांधली पर 23 जून को इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी। वफाकी हुकूमत को भी कहा कि अगर आइनी मुद्दत बढ़ाने की कोशिश की गई तो भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क की 3 बड़े इदारे आइंदा इलेक्शन में गैर जानिबदार रहें। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। मंसूरा में मजलिस शूरा के 3 रोज़ा इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि 15 जनवरी को इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन और नया ड्रामा रचाया गया। मसाइल के भंवर में फंसे अवाम का मदावा सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। उन्होंने कहा कि शफाफ इलेक्शन तब तस्लीम करेंगे जब 3 इदारे गैर जानिबदार रहें। एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन और अदालत उज़्मा ये कौमी इदारे हैं। इस कौमी इदारों की तौक़ीर, इज़्ज़त एक ही सूरत में मुमकिन है कि तीनों इदारे सियासत से दूर रहे। और हम यही चाहते हैं कि एक शफाफ इलेक्शन उस वक़्त लोग तस्लीम करेंगे जब ये 3 इदारे इलेक्शन के दौरान गैर जानिबदार रहे। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान के महरूम अवाम को उनका हक मिलना चाहिए। कैमरामैन शहबाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाला सितार भी जिना हाउस हमले में मुलव्विस निकली हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जियो फेंसिंग की हतमी फहरिस्त में नाम आने पर हिरासत में लिया है, जबकि मुलजिमा शुमाला सितार को गिरफ्तार करने के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस राय के मुताबिक ऐसा बताना है कि जियो फेंसिंग की हतमी फहरिस्त में नाम आने पर कौमी फुटबॉलर शुमाला सितार की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइश गाह पर छापा मारा गया, जबकि शुमाला फुटबॉल की कौमी टीम में बतौर गोलकीपर नुमाइंदगी करती रही हैं। खिलाड़ी शुमाला सितार से जेल में शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जबकि पुलिस ने जिना हाउस हमले का मुकदमा दहशतगर्दी समेत संगीन दफात के तहत दर्ज कर रखा है। जिना हाउस के बाहर लगे कैमरों और मोबाइल फुटेज से तफ्तीश जारी है। तो दूसरी जानिब आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शहदा पुलिस के वरिसा की वेलफेयर के लिए इकदाम किया गया है, जबकि डीपीओ खानेवाल राना उमर फारूक ने शहीद कांस्टेबल वकास अजीम की बेवा को नए घर की चाबियां सौंप दी हैं, जबकि शहीद कांस्टेबल की बेवा को घर की चाबियां और चेक देने की तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किद हुई है, जबकि डीपीओ राना उमर फारूक ने शहीद की बेवा हुमैरा अरशद को 1 करोड़ 35 लाख रुपए का चेक दिया है, जबकि शहीद कांस्टेबल वकास अजीम ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अप्रैल 2021 में जाम शहादत नोश किया था। आजी पंजाब का एक बयान में कहना है कि शहीद के अहले खाना की कफालत और देखभाल महकमा पुलिस की जिम्मेदारी है। शहीद के बच्चों का आला तालीम के लिए बेहतरीन दर्सगाहों में दाखिला यकीनी बनाएंगे। थाना फैसल टाउन के इलाके में फ्रॉड का मामला, पुलिस ने एक ही वाक़े के 2 अलग अलग मुकदमात एक ही थाने में दर्ज कर लिए। थाना फैसल टाउन में पहला मुकदमा 11 जून को अदालती हुक्म पर दर्ज हुआ, दूसरा मुकदमा पुलिस ने एसपी ऑपरेशंस मॉडल टाउन के हुक्म पर दर्ज कर लिया। अदालत ने जमीलुर रहमान पर 420 की दफात के तहत मुकदमा उमर अहमद की मुद्दत में दर्ज करवाया था। एसपी ऑपरेशंस ने 11 जून को दर्ज होने वाले मुकदमे के मुद्दई को मुलजिम बनाकर
एक ही केस में दूसरा मुकदमा 406 का दर्ज करवा दिया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अदालती हुक्म पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो पुलिस अपनी मर्जी से दूसरे मुकदमे में मुद्दई को मुलजिम नहीं बना सकती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लफ्ज़ वालिद कहने को तो सिर्फ 4 हरूफ हैं, लेकिन ये 4 हरूफ अपने अंदर विलायत, एसार वफ़ा, उल्फत और शफ़क़त और ऐसा लुत्फ़ व करम समाये हुए हैं कि जिसका कोई मुतबादल नहीं हो सकता। बाप ही तो वो हस्ती है जो अपने अहले खाना की कफ़ालत के लिए अपने वजूद को भी रेज़ा रेज़ा कर देने से गुरेज नहीं करता। बाप का साल में सिर्फ एक दिन तो नहीं होता कि बाप तो हमारे हर दिन और हर दिन के हर लम्हे का मालिक और मुख्तार होता है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि चंद एक सूरतों में शायद बाप के जीते जी उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं हो पाता। तभी तो जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो मालूम पड़ता है कि बाप था सर पे तो सहल थी जिंदगी, बाद उसके ये मुसीबतों में घिर गई। अब तपती शुआएं मेरे सर पर पड़ती हैं, वो छत जिसका साया था बहुत जल्द गिर गई। वालदा जो होती है औरत होने के नाते अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर देती है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देती है, अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर देती है, लेकिन वालिद जो है वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं करते। उनके दिल में औलाद के लिए बहुत शदीद मोहब्बत होती है और जब हम उनसे बात करते हैं तो उनकी मुसरत और उनकी आंखों में चमक जो है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बाप ही तो है जो अपने बच्चों को खुद से ज्यादा तरक्की करते हुए देखकर खुशी से फूले नहीं समाता। वही तो है जो चाहता है कि उसके बच्चों को गर्म हवा छू कर भी ना गुजरे। तो बस इतनी सी बात है कि आज का दिन हमें सिर्फ ये याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि खबरदार, कहीं भूले से भी बाप की शान में गुस्ताखी मत कर बैठना और उनके सामने हमेशा इज्जो इनकसार से झुके रहना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे रब की रज़ा तुम्हारे वालिद की रज़ा के अंदर है। वैसे तो एक दिन मनाया जाता है वालिदैन के लिए, वालिद के लिए, वालदा के लिए। इस्लाम के अंदर 24 घंटे जो है वालिदैन के लिए है। रात के वक्त भी वालिद तुम्हें बुलाए तो औलाद पे लाजिम है कि वालिद की बात सुने। मुख्तसरन यूँ जान लीजिए कि अपने वालिद से हम कलाम रहो, यूँ एक बूढ़ा जवान रहता है। एक अहम बात और भी है कि वालिदैन की खिदमत का पेड़ जितना ज़्यादा घना होगा ये हमारे लिए भी उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए कि एक रोज़ हमें और आपको भी इसी पेड़ के साए में सुस्ताना है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। शाहपुर कांजरा समेत 9 मवेशी मंडियां आज से फ़ाल होंगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं 8 आरजी मवेशी मंडियां नो प्रॉफिट नो लॉस पर कायम की जाएंगी। आरजी मवेशी मंडियों में कोई फ़ीस या टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। टैक्स के नाम पर भत्ताखोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो खबरें फैल रही हैं कि हम जो मंडियों में जानवर बेचने आते हैं हम उनसे टैक्स की सूरत में कोई पैसे लेंगे, तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे और प्रॉपर उसको नोटिफाई करेंगे। और उसके अलावा अगर कोई चार्ज करेगा तो उसके खिलाफ इलीगल जो वो काम डिक्लेयर होगा और उसके खिलाफ। तो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। दूर दराज से व्यापारी आला नस्ल के जानवर लेकर पहुंच गए हैं, जबकि मंडी में राजनपुरी बकरों और गुजरांवाला के वेड़ों की धूम है। जबकि व्यापारी मुंह मांगे दाम वसूल करने में पुरआज़्म है, जबकि गाहक कम कीमत में खूबसूरत जानवर की तलाश में दिखाई दे रहे हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में मेला सज गया। खूबसूरत रंगत वाले निराले जानवर हर एक की तवज्जो का मरकज दिखाई दिए। खूबसूरत किस्म के बकरे, वच्छे, ऊंट, दुम्बे और बैल का राज। लंबा कद, खूबसूरत जिसामत, निखरी रंगत और इस पर हजारों नखरों ने जानवरों की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। मवेशी मालिकान का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल रश देखने में कम नजर आ रहा है। इस साल मंडी में जानवरों की मुख्तलिफ किस्मों को लाया गया है। छोटे जानवर 70,000 से 1.5 लाख में, जबकि बड़ा जानवर 2 से 30 लाख में फरोख्त किया जा रहा है। चोलिस्तानी है, साइवल है, उसके बाद राजनपुर की नस्ल है, नुकरा नस्ल है और आजकल एक बड़ी इन नस्ल चल रही है, इसका नाम ब्राह्मण है, उसके कान लंबे होते हैं। इंतजामिया का कहना है कि शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में ATM, बिजली, पानी और जानवरों के मेडिकल कैंप की सहूलियात मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 के कैंप समेत ग्राहकों और व्यापारियों की सहूलियात के लिए शिकायत सेल और हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है। यहाँ पे हम व्यापारियों को टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी की फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए लाइट्स का बंदोबस्त है। अगर लाइट जाती है तो यहाँ पे बैकअप के लिए जनरेटर मौजूद हैं, टॉयलेट्स की फैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा अगर इनको कोई किसी किस्म की कंप्लेन होती है तो यहाँ पे शिकायत सेल है। ग्राहकों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतों में खासा फर्क आया है। मवेशी मंडी में वजनी जानवर मुनासिब कीमत पर तलाश कर रहे हैं। कीमतें तो बहुत ज़्यादा है जी, पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो मुझे लग रहा है कि 100% ही कीमत ज़्यादा मांग रहे हैं इस दफ़ा। जानवर काफ़ी महंगे हैं और खूबसूरत भी हैं। हमें जो जानवर चाहिए 10-12 लाख में
वो नहीं मिल रहा है 10-12 लाख में। 10-12 लाख वाला जानवर तकरीबन 15 लाख 20 लाख मांग रहे हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में गाहक और व्यापारी किसी भी खतरे या परेशानी के पेश नज़र 1233 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इंतजामिया की जानिब से शिकायत को बरवक्त हल किया जाएगा। मवेशी मंडियों में जानवर तो महंगे हैं, उनका चारा भी सस्ता नहीं। खरीदार और दुकानदार दोनों ही महंगाई का शिकवा करते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर की कुर्बानी करना हर किसी की ख्वाहिश। मवेशी मंडियों में जानवर तो महंगे हैं ही, उनका चारा भी सस्ता नहीं। शहरी भी क्या करें, जानवर खरीदा है तो अब उनको चारा भी तो खिलाना है। चारे की मुस्तकिल और आर्जी दुकानों पर खरीदारों का रश लग गया। तूड़ी 50, वंडा 100 से 140 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता साल जो सब्ज चारा 15 रुपए किलो था, अब उसका रेट 30 से 40 रुपए फी किलो है। पिछले साल जैसे कुतरा था ये 7 रुपए किलो था, आज 15 रुपए किलो लेके जा रहा हूँ। ये 20 रुपए था, ये 30 रुपए हो गया। इतनी महंगाई हो गई है। सब्ज चारा पीछे मंडी में ही इस टाइम 1100 रुपये मान 1200 रुपये मंडी का रेट है, यानी कि 30 रुपये हमें वहाँ पे खरीद पड़ रही है। तो इधर आके हम सिर्फ इसको सेल कर रहे हैं। सिर्फ पूरे सीज़न की जो हमारी दुकानदारी है उसको मेंटेन करने के लिए हमने इसको 30 रुपये किलो चलाया हुआ है। कुछ जगह पे लोग इसको 40-35 अपने हिसाब से सेल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं ईद से पहले जानवर खरीदा है ताकि उसको खिला पिलाकर खिदमत करें, लेकिन महंगाई ने परेशान करके रख दिया है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गर्मी में मीठे मशरूब पीना भी अब इंतहाई मुश्किल हो गया है। चीनी के नर्ख में 5 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा हो गया है, जबकि हफ्ते भर में चीनी की कीमत में तेज़ी जारी है। सरकार रेट पर अमल नहीं हो रहा। चीनी की सरकारी कीमत कागजों तक महदूद। चीनी खरीदना जेब पर भारी पड़ने लगा। शुगर मिल्स मनमानी कीमत पर मार्केट में चीनी फराहम करने लगी। एक हफ्ते में चीनी की कीमत 5 रुपए फी किलो तक बढ़ गई। शहर में अक्सर मकामात पर चीनी के निर्ख 125 रुपए फी किलो हो गए। बाज इलाकों में तो चीनी 130 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। वफाकी हुकूमत ने चीनी के निर्ख 98 रुपए 82 पैसे फी किलो मुकर्रर कर रखे हैं। गुज़श्ता क्रशिंग सीजन के बाद से चीनी की कीमत में इजाफा जारी। शुगर मिल्स मालकान की जानिब से चीनी के निर्ख मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं। थोक मार्केट में चीनी का 50 किलो का थैला हफ्ते भर में 500 रुपए तक महंगा हुआ। एक थैले की कीमत 6100 रुपए तक पहुंच गई। अवाम कहते हैं इंतजामिया कहीं है ही नहीं, सरकारी रेट पर जानबूझकर अमल नहीं कराया जाता। चीनी बड़ी महंगी कर दी है, 125-30 रुपए किलो दे रहे हैं। इन आंधी मेहरबानी हुकूमत की सस्ती करे, रेट लगाएं। इन हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान का माहौल अच्छा करें, महंगाई का जोर तोड़ें, कंट्रोल में लाएं। मार्केट ज़राए के मुताबिक पैदावारी लागत बढ़ने का जवाब बनाकर चीनी महंगी की जा रही है और इसमें मजीद तेजी का खदशा भी मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई का नॉन स्टॉप सफ़र जारी। ब्रायलर गोश्त की कीमत 656 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। अंडे मजीद महंगे। आलू, प्याज, टमाटर की कीमत में भी तेज़ी। फलों की कीमत भी इंतहाई सतह पर है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का जोर कम न हुआ, अशिया ज़रूरिया की कीमतें पहुंच से बाहर हो गई। मुर्गी महंगाई की तेज़ रफ्तार ट्रेन पर बदस्तूर सवार। ब्रायलर गोश्त 8 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 656 रुपये हो गई। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपये महंगे होकर 242 रुपये फ़ी दर्जन हो गए। सब्जियों के नर्ख में तेज़ी जारी। आलू और प्याज 80 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। टमाटर दर्जा अव्वल 60 से 70 रुपये फ़ी किलो बेचे गए। लहसुन 400 और अदरक 800 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हुए। फूल गोभी 140, भिंडी 120 और मटर 300 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे। आवाम का कहना था कि लगता है महंगाई कम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। सुबह कुछ रेट होता है, शाम को कुछ होता है। जब कोई चेक करने वाला ही नहीं है, चेक करने का बैलेंस ही नहीं है, तो क्या रेट हम मुकर्रर होंगे? अपनी मर्जी से रेट लाते हैं, अपनी मर्जी से आता है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि इसके बारे कुछ सोचे, अवाम के लिए कुछ सोचे, ताकि उसमें बेहतरी रहे। अवाम का भी हक है जीने का। आप अपने तो सारे काम कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, आपको तो ये भी नहीं पता ये क्या चीज़ भाव चल रहा है। ये तो गरीब आदमी को पता है कि वो क्या खरीद रहा है, क्या ले रहा है, क्या नहीं कर रहा। फलों में सेब दर्जा अव्वल 400 रुपये, आम 200 से 250 रुपये और तरबूज 40 से 50 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहे। केले दर्जा अव्वल 280 और दर्जा दोम 180 रुपये फ़ी दर्जन बेचे गए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। कारोबारी हफ्ते में करेंसी मार्केट में मज़बूत रुझान रहा है। इंटरबैंक में डॉलर मामूली महंगा हुआ, ताहम ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये सस्ता होकर 300 रुपये की हद से नीचे आ गया है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए।
डॉलर और रुपए की कशमकश जारी। रिकॉर्ड तेजी के बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर और रुपए की शरह तबादला में गैर मामूली फर्क कम होने लगा। कारोबारी हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर रेट 8 रुपए कम हुआ, जिससे डॉलर रेट 297 रुपए तक आ गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट का फर्क 10 रुपए रह गया। गुज़िश्ता हफ्ते इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फर्क 30 रुपए तक पहुंच चुका था। मार्केट ज़राए के मुताबिक अक्सर मुआशी अशारिये मनफी होने के बावजूद डॉलर की कदर में कमी बेहतर ख्याल की जा रही है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट ज्यादा होने से तरसीलाते ज़र के लिए हुंडी का इस्तेमाल बढ़ गया था, जिससे तरसीलाते ज़र की सरकारी सतह पर आमद कम हो रही थी। ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता हुआ, ताहम इंटरबैंक डॉलर रेट में मामूली इजाफा देखा गया। हफ्ता भर में सरकारी रेट 26 पैसे इजाफे से 287 रुपए 19 पैसे तक पहुँच गया। मार्केट ज़रा के मुताबिक IMF से मामला तय पाने में ताखीर से रुपए पर दबाव का खदशा है, लेकिन चीन से 1 अरब डॉलर मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ सकती है। रूसी तेल की चीनी करेंसी में खरीदारी से भी रुपए को संभाला मिल सकता है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर को मज़ीद जिम्मेदारियां मिल गईं। आमिर मीर को निगरान काबीना में पंजाब टूरिज़म, आर्कियोलॉजी एंड टूरिज़म का कलमदान भी सौंप दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात के बाद नोटिफिकेशन जारी। लियाकत अली मज़ीद तफसीलात बताएंगे। बताइए लियाकत। हाँ जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सूबाई वज़ीर आमिर मीर को एक और बैचलर तब्दील कर दिया है। आमिर मीर को वज़ारत इत्तलात और सकाफ़त के साथ साथ सूबाई वज़ीर सियाहत, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम की वजारत का अज़ाफ़ी कलमदान भी सौंप दिया गया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आमिर मीर के सूबाई वज़ीर बराए टूरिज़्म, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूबाई वज़ीर आमिर मीर जो है अब महकमा इत्तलात और सकाफ़त के साथ साथ इन महकमों के अमूर को भी देखेंगे। शुक्रिया लियाकत। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि ठंडे मशरूबात की मांग भी बढ़ गई है। लोग गर्म मौसम में प्यास बुझाने के लिए रिवायती मशरूबात बादाम और संदल से लुत्फ अंदोज होते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ठंडे ठार मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। शहर में जगह जगह शरबत बेचने वालों के डेरे बरकरार। शहरियों की बड़ी तादाद ठंडे शरबत से लुत्फ अंदोज होने लगी। शरबत गर्मी की हिद्दत कम करने और जिस्म को हशाश बशाश रखने के लिए बेहद मुफीद है। बादाम और संदल का शरबत राहत जान है। शरबत जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। शहरियों का कहना है कि ठंडे मशरूबात ही गर्मी का तोड़ है। अभी घर से निकले थे घर की चीजें लेने के लिए, तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो हमने कहा चलो यहाँ से शरबत पी लेते हैं। वैसे प्राइस भी मुनासिब है, इनका मेयार भी अच्छा है। क्रिकेट वगैरह खेल के आए हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शदीद किस्म की गर्मी है, और यहाँ पे शरबत पिया, बड़ा एंजॉय किया माशाल्लाह, और सारी गर्मी दूर हो गई है माशाल्लाह इस पीने से। गर्मी के